Okay. Yes, sir. Sorry. जी जी नहीं, आई एम रिकॉर्डिंग इन माई ओन लैपटॉप. जो लैपटॉप का बिल्ट इन रिकॉर्डर है ना, उससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ. ओके, स्टार्टिंग अगेन. सो वी वर टॉकिंग अबाउट chapter number 11, cubes and cuboids. So in this chapter we have so many other shapes as well, but in our syllabus we are restricted to only cubes and cuboid, exercise 11a. So as we know that if we have to find out the area of anything, we use a specific formula. For example, if we are talking about the area of a rectangle, the formula to calculate the area is length multiplied by breadth. So if we have a rectangle like this, for example, which has a length of, let's say, 10 centimeter and the breadth is of 5 centimeter, the area is 10 multiplied by 5, length multiplied by breadth, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस वी ऑलरेडी नो. ठीक है, ये हमें ऑलरेडी पता है कि जब भी हम एरिया किसी भी शेप का कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए व्हाट वी यूज़ अ स्पेसिफिक फार्मूला. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ ट्रायंगल, वी विल यूज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट rectangle, we will use the area of rectangle. If we are talking about area of circle, we will use the area of circle, right? So for every shape we have a specific formula to calculate the area of that shape. Now what is area actually? Area कहते किसको हैं? Area means the space covered by something. The space covered by something, right? Area means the space occupied by something. Now in this chapter we are going to discuss the concept of volume. ठीक है, we are going to discuss the concept of volume. As you can see, the name of the chapter is volume and surface area. So what is the difference between volume and area? Volume is also the space occupied. Volume भी space occupied को ही कहते हैं. Volume is also space occupied, but volume talks about the space occupied in थ्री डायमेंशन. जब हमारे पास स्क्वायर, रेक्टेंगल या सर्कल होता है तो उसमें लेंथ एंड ब्रेथ होती है, हाइट नहीं होती. इन थ्री डायमेंशन वी हैव थ्री डायमेंशन. 3D means three dimensions: length, breadth and height. We have three dimensions, right? So the space occupied by a three-dimensional object is called volume. The space occupied by a two-dimensional object is called area. ठीक है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ये सारे टू डायमेंशंस हैं. इसकी स्पेस ऑक्यूपाइड को हम एरिया कहते हैं. और थ्री डायमेंशन में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे. तो थ्री डायमेंशन में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसकी स्पेस ऑक्यूपाइड को हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम. सो द फर्स्ट शेप दैट वी हैव इज cuboid. Now what is a cuboid? Cuboid, just like a rectangle, two dimension में it is a rectangle. In three dimension it becomes a rectangular box, right? अगर rectangle को हम थ्री डायमेंशन में लेकर जाएं तो ये क्या बन जाएगा? It will become a rectangular box, something like this, right? Something like this. This is a rectangular box. A rectangular box is called cuboid. Now it has a length, it has a breadth and it has a height. So the formula to calculate the volume of a cuboid is length multiplied by breadth multiplied by height. Length multiplied by breadth multiplied by height. So for example, if the length is, let's say, 10, the height is, for example, 4 and the breadth is, for example, 5, so length multiplied by breadth multiplied by height will be 5 multiplied by 4 multiplied by 10
यू कैन मल्टीप्लाई इन एनी सीक्वेंस, मल्टीप्लिकेशन में अगर सीक्वेंस चेंज हो जाए तो इट डजेंट मैटर, ठीक है। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ द सेम थिंग। सो सिमिलरली अगर वॉल्यूम में मल्टीप्लिकेशन में अगर सीक्वेंस चेंज हो रहा है तो इट डजेंट मैटर, ठीक है। सो दिस विल बी 5 4s are 20, so this will be 200 centimeter square. So this will be 200 centimeter square. All right. Okay, now let me talk about the unit of measurement. If you are talking about area, the unit will be centimeter square, meter square. But if we are talking about volume, this will be centimeter cube. Okay, this will not be centimeter square, this will be centimeter cube. Okay, the unit of volume is meter cube, centimeter cube, millimeter cube. These are the units of volume. Just like we have unit for measuring the time. अगर आप टाइम मेजर कर रहे हो तो उसके लिए यूनिट क्या होगा? मिनट्स, आवर्स, seconds. These units are used to measure the time. If you are talking about weight, of something, the unit will be kilograms, grams, right? If we are talking about the measurement of length, if you are measuring length, the unit will be let's say kilometer, meter, ठीक है। तो फॉर मेजरिंग एनीथिंग, किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए कोई ना कोई यूनिट यूज़ होता है। तो अगर आप वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं, इफ़ यू आर मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ एनीथिंग, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज़ मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब। जैसे यहाँ पर अभी मैंने आपको क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैलकुलेट करके दिखाया, ठीक है। तो क्यूबॉइड के जो डायमेंशंस गिवन है, इफ़ दीज डायमेंशंस आर इन सेंटीमीटर, द आंसर विल बी सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट मीटर्स में गिवन है, मीटर्स में गिवन है, तो आपका जो वॉल्यूम होगा इट विल बी इन मीटर क्यूब। अगर इसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट मिलीमीटर्स में गिवन है, तो द वॉल्यूम विल बी इन millimeter cube. So the unit of volume is meter cube, centimeter cube, millimeter cube. These are the units used to measure the volume. Now the very first thing that we have in this chapter is the conversion of units. Now conversion of units is not a new thing for us. Just like in past, you must have converted different kind of units. So if you talk about the conversion of units, it can be done from meter to centimeter, right? It can be done from hours to minutes. It can be done from kilogram to grams, राइट ये सारी कन्वर्जन्स आपने देखी हुई हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो 100 मीटर्स को, तो वी नो दैट 1 मीटर इज़ 100 सेंटीमीटर, सो व्हेन वी आर कन्वर्टिंग 100 meters, we will multiply this 100 by 100, so this will be 10,000 centimeters. Similarly, if I am converting let's say 40 kg, for example, 40 kg into grams, so I know that 1 kg is 1000 grams, right? 1 kg is 1000 grams, so 40 kg will be 40 multiplied by 1000, so this will be 40,000 grams. Similarly, if I am converting, for example, 3 hours into let's say minutes, अगर मुझे 3 hours को minutes में convert करना है, तो I know that 1 hour is 60 minutes.
1 hour is 60 minutes. So for 3 hours it will be 3 multiplied by 60. This will be 180 minutes. This will be 180 minutes. So these are the different types of conversions that we already know. Now using this knowledge, we are going to do the conversion of units of volume. Okay. Now I am going to show you the very first question of this exercise. The very first question of this exercise, which talks about converting the different units of volume. So this is the very first question of exercise 11A. You can see the requirement of the question. The question is saying express each of the following in centimeter cube. Express each of the following in centimeter cube. So look, as I just explained that we have different types of conversions of different units. So whenever you are converting any unit, keep one thing in mind. If you are converting a larger unit into a smaller unit, you will always multiply. And when you are converting a smaller unit into a larger unit, you will always divide. ठीक है? जैसे for example, if I have to convert, let's say I am converting 10 centimeter into meters. तो सेंटीमीटर छोटा यूनिट है ना, सेंटीमीटर इज़ अ स्मॉलर यूनिट एंड मीटर इज़ अ लार्जर यूनिट. सो फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. ठीक है. सो 10 डिवाइडेड बाय 100. ठीक है. द कन्वर्जन रेट, जो कन्वर्जन रेट होगा उससे डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे. तो कन्वर्जन रेट ऑफ मीटर एंड सेंटीमीटर क्या है? वी नो दैट 1 मीटर इज़ 100 सेंटीमीटर. तो हमने इसको 100 से डिवाइड किया. So this will become 1, 2, this will become 0.1 meters. 0.1 meters. Similarly, if I am converting, let's say 30 seconds को मैं convert कर रहा हूँ minutes में. Again seconds छोटा होता है, second is smaller, minutes is larger. So smaller to larger हम क्या करते हैं, divide करते हैं. And what is the conversion rate? The conversion rate is 60. एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं. तो जो भी कन्वर्जन रेट होगा उससे आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे. ठीक है. सो द कन्वर्जन रेट इज़ 60. सो 30 को आप 60 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, बिकॉज यू आर कन्वर्टिंग ए स्मॉलर यूनिट इनटू लार्जर यूनिट. सो 30 डिवाइडेड बाय 60, दिस विल बी 30 अपॉन 60. 0 and 0 cancel out, 1 and 1 upon 2. So 1 upon 2 means 0.5 minutes. 0.5 minutes. तो 30 seconds कितने minutes के इक्वल हुआ? 0.5 minutes के इक्वल हुआ. एक और कन्वर्जन आपको दिखा देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल आई एम कन्वर्टिंग, लेट्स से 750 grams. 750 grams I am converting into kilograms. So what is the conversion rate? The conversion rate is 1 kg is 1000 grams. This is the conversion rate. So again grams is a smaller unit and kilograms is the larger unit. Smaller unit को larger unit में जब आप convert करोगे तो what will you do? You will divide. So 750 डिवाइड होगा किससे? 1000 से. सो 750 डिवाइडेड बाय 1000. शिफ्ट द डेसिमल 3 times, 1, 2, 3. दिस विल बी 0.75 kilograms. So this is how we do different types of conversion.
Now using this knowledge, we are going to convert the units of volume. ये मैंने आपको थोड़ा सा background explain कर दिया कि different units हो length का या time का या weight का, तो उसके unit में conversion किस तरह होता है, ये मैंने आपको थोड़ा सा background explain कर दिया. अब इसी knowledge को use करते हुए हम conversions करेंगे, ठीक है. The very first question is talking about converting meter cube into centimeter cube. आपके पास जो लेंथ्स गिवन है आप देख सकते हैं, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है. और क्वेश्चन किस में गिवन है, क्वेश्चन आपका मीटर क्यूब में गिवन है, ठीक है. तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस मीटर क्यूब इनटू सेंटीमीटर क्यूब. तो बिफोर कन्वर्टिंग फर्स्ट वी मस्ट नो द कन्वर्जन रेट. सबसे पहले हमें क्या चीज़ पता होनी चाहिए, सबसे पहले हमें इसका कन्वर्जन रेट पता होना चाहिए. कन्वर्जन रेट के 1 मीटर क्यूब कितने सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, ठीक है. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए. तो हमें ये पता है कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है. 1 मीटर इज़ इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर्स. बट वी हैव टू टॉक अबाउट मीटर क्यूब. हमें मीटर क्यूब का पता करना है. तो हम इसी के ऊपर पावर 3 अगर अप्लाई करें, इफ़ वी अप्लाई पावर 3 ऑन बोथ साइड्स, व्हाट विल हैपन, दिस विल बिकम 1 मीटर क्यूब. और किसी भी चीज़ पे जब पावर 3 अप्लाई होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि 20 पावर 2, तो 20 पावर 2 क्या होगा, 2 2s are 4 और एक ज़ीरो है तो उसका डबल, यानी जो ज़ीरोज़ जितने ज़ीरोज़ होते हैं उसको हम डबल कर देते हैं इन पावर 2, और जितने ज़ीरोज़ होते हैं उसको हम ट्रिपल कर देते हैं इन पावर 3. तो यहाँ पर पावर 2 है तो एक ज़ीरो है, एक ज़ीरो का डबल क्या होगा, 2 ज़ीरोज़, दिस विल बिकम 400. इसी तरह फॉर एग्जांपल इफ़ आई राइट 20 पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2s are 4, 4 2s are 8 होगा, और ज़ीरो 3 टाइम्स आ जाएगा, 1 2 3. Similarly, if I have let's say 500 है मेरे पास, ठीक है. तो 500 अगर मेरे पास है तो 500 का डबल क्या होगा, 500 का अगर पावर 2 में करूँ तो इसका पावर 2 क्या होगा, 5 5s are 25, और डबल ज़ीरो 2 ज़ीरोज़ है ना, तो 2 ज़ीरोज़ का डबल क्या होगा, 4 ज़ीरोज़, 1 2 3 4. इसी पे अगर मैं पावर 3 अप्लाई कर दूँ, पावर 3, तो 2 का 3 टाइम्स क्या होता है, 6, राइट. तो 5 5s are 25, 25 5s are 125, और यहाँ 6 ज़ीरोज़ लग जाएंगे, ठीक है, ये 6 ज़ीरोज़ लग जाएंगे. तो ये बात याद रखें कि जब भी आप पावर 2 अप्लाई करते हैं तो जितने ज़ीरोज़ होते हैं ना वो डबल हो जाते हैं, और जब पावर 3 अप्लाई करते हैं तो जितने ज़ीरोज़ होते हैं वो 3 टाइम्स हो जाते हैं, 3 टाइम्स, ठीक है. द ज़ीरोज़ बिकम 3 टाइम्स. ओके, सो यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास जो कन्वर्जन रेट है, कन्वर्जन रेट क्या हो जाएगा, 100 पावर 3. तो मैंने अभी आपको सिखाया कि 2 ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ का 3 टाइम्स क्या होगा, 6 ज़ीरोज़ बन जाएगा. तो ये होगा 1 0 0 0 0 0 0 3 टाइम्स. सो 1 मीटर क्यूब इज़ 1 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब. तो इससे हमें कन्वर्जन रेट पता चल गया कि जब भी हमारे पास मीटर क्यूब होगा तो 1 मीटर क्यूब किसके इक्विवेलेंट होगा, 1 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होगा. दिस इज़ द रेट ऑफ कन्वर्जन बिटवीन मीटर क्यूब टू सेंटीमीटर क्यूब. अब जब भी आप मीटर क्यूब को कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर क्यूब में तो आप मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज लार्जर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट मल्टीप्लाई होता है. और जब भी आप कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में तो आप क्या करोगे, डिवाइड, बिकॉज सेंटीमीटर क्यूब इज़ स्मॉलर, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब इज़ स्मॉलर.
तो स्मॉलर टू लार्जर जब हम जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, ठीक है. सो मूविंग यूजिंग दिस concept I am solving question number 1. Please look carefully. Okay, please look carefully. तो मैंने आपको ये बताया कि 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल है? 1 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है, ठीक है. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए यू हैव टू कन्वर्ट 4 मीटर क्यूब को आपको किस में कन्वर्ट करना है? इनटू सेंटीमीटर क्यूब. 4 मीटर क्यूब को आप सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है. So I know that the rate of conversion, the conversion rate is this. 1 meter cube is 1 million centimeter cube. 1 meter cube is 1 million centimeter cube. So I am converting larger unit into smaller unit. So I will do multiplication. मैं 4 को 1 million से क्या कर दूँगा? मल्टीप्लाई कर दूँगा. अगर मुझे सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना हो मीटर क्यूब में, जैसा कि पार्ट बी में है, तो मैं क्या करूँगा? डिवाइड बाय 1 मिलियन, ठीक है. मीटर क्यूब टू सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन, सेंटीमीटर क्यूब टू मीटर क्यूब डिवाइड बाय 1 मिलियन. सो दिस विल बिकम 4 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब. 4 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब. ये आपका पार्ट 1 का आंसर हो गया. पार्ट 2 भी बिल्कुल सेम इसी तरह होगा. इफ़ यू सी इन पार्ट 2 द वैल्यू गिवन इज़ 0.5 मीटर क्यूब. 0.5 मीटर क्यूब इज़ द वैल्यू एंड यू हैव टू कन्वर्ट दिस 0.5 इनटू सेंटीमीटर क्यूब. सो यू विल मल्टीप्लाई दिस बाय 1 मिलियन अगेन. नाउ जब ये मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन होगा तो क्या होगा? 0.5 में डेसिमल आप 6 टाइम्स शिफ्ट करोगे. 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पर 5 ज़ीरोज़ ऐड हो जाएंगे. द आंसर विल बी 500,000 सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज़ गोइंग टू बी योर आंसर फॉर पार्ट 2. I hope it is clear to all of you. Moving on to part B of this question. अभी मैं explanation कर रहा हूँ, ठीक है. First listen to all the explanation, whatever I am explaining. Then whatever you don't understand, at the end of this, I will ask you. You can ask me questions regarding whatever you don't understand, ठीक है. So moving on to part B of this question. In part B, the requirement is to convert meter cube into centimeter cube. Meter cube into centimeter cube. Part 1 में हमने क्या किया था? Part A में सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया था. सॉरी, मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया था. मैंने यहाँ गलत लिख दिया, मैं इसको करेक्शन कर लेता हूँ. पार्ट ए में हमने मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया था. अब हमें सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है इनटू मीटर क्यूब, ठीक है. हमारे पास जो वैल्यू गिवन है, द वैल्यू गिवन इज़ इन सेंटीमीटर क्यूब. दिस 250,000 इज़ व्हाट? ये 250,000 क्या चीज़ है? दिस इज़ सेंटीमीटर क्यूब एंड आई हैव टू कन्वर्ट दिस सेंटीमीटर क्यूब इनटू मीटर क्यूब. इसको मुझे कन्वर्ट किस में करना है? मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, सही है. नाउ अगेन आई एम गोइंग टू यूज़ द सेम कन्वर्जन रेट, ठीक है. सेम यही वाला कन्वर्जन रेट यहाँ पर भी यूज़ होगा. यही कन्वर्जन रेट यहाँ पर भी यूज़ होगा कि 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है? 1 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब. बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू डिवाइड बिकॉज स्मॉलर टू लार्जर वी ऑलवेज डिवाइड. स्मॉलर यूनिट को लार्जर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम हमेशा डिवाइड करते हैं. तो 250,000 डिवाइड होगा 1
मिलियन से 250,000 डिवाइड होगा 1 मिलियन से, तो कितने ज़ीरोज़ शिफ्ट होंगे? 6 ज़ीरोज़, 1 2 3 4 5 6. सो द आंसर इज़ गोइंग टू बी 0.25 meter cube. 0.25 meter cube. This is the conversion of the first part, centimeter cube into meter cube. पार्ट 2 में सिर्फ वैल्यू चेंज है, कॉन्सेप्ट वही है जो पार्ट ए में यूज़ हुआ है. ठीक है, वी आर गोइंग टू यूज़ द सेम कॉन्सेप्ट, द ओनली डिफरेंस इज ऑफ द वैल्यू. So same concept will be applied over here also. We are going to divide this value by 1 million, because again we are converting centimeter cube into meter cube. So 67,800 divided by 1 million. 1 million. So again shift 6 times the decimal, 1 2 3 4 5 6. This a 0 will be added over here, यहाँ 0 add हो जाएगा. So this will become 0.0678 मीटर क्यूब. तो हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में. ठीक है, छोटा सा रीकैप कर देता हूँ. इन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए वी वर कन्वर्टिंग मीटर क्यूब इनटू सेंटीमीटर क्यूब, एंड इन पार्ट बी वी वर कन्वर्टिंग सेंटीमीटर क्यूब इनटू मीटर क्यूब. मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन करेंगे, और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में जब कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 1 मिलियन करेंगे, बिकॉज लार्जर टू स्मॉलर मल्टीप्लाई करना होता है और स्मॉलर टू लार्जर डिवाइड करना होता है. तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ गिवन है इनको हमने मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन किया, वी गॉट आवर आंसर एज सेंटीमीटर क्यूब. और यहाँ जो वैल्यूज़ गिवन है इनको हमने डिवाइड बाय 1 मिलियन किया टू गेट आवर आंसर इन मीटर क्यूब. नाउ इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. मैं यहाँ पर माइक्स ऑन कर रहा हूँ. येस, यू हैव एनी क्वेश्चन? जी बेटा पूछें, 1 बाय 1. बेटा मैंने क्लास रिकॉर्ड की हुई है, ठीक है, तो आई विल पोस्ट द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस क्लास ऑन गूगल क्लासरूम, सो फ्रॉम ओवर देयर यू कैन चेक इंशाल्लाह.